जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। कल से नवरात्रों के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है और दशहरे का पर्व आने में बस कुछ ही वक्त रह गया है, जिसकी तैयारियां आज से ही शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 वर्ष किस प्रकार कोरोना महामारी के कारण जो दशहरे की धूम थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन अब ये धूम और रौनक फिर से लौट आई है। आज लुधियाना के जमालपुर में भोला शंकर एंड कंपनी की ओर से एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए डायनासोर की बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि इनमें मूवमेंट भी होगी, जिससे बच्चे छूकर भी देख सकेंगे। डायनासोर की मूर्ति के साथ साथ वहां पर सर्कस और कई तरीके के झूले के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इन तैयारियों के बारे में मेले के ऑर्गेनाइजर वरिंदर कपूर ने हमसे जानकारी साझा की। ग्रेट दुशहरा मेला ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਏ ਝੂਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡੀਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 300 400 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਾਰ, ਟੋਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 40 ਰੁਪੀਸ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 400 ਰੁਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 40 ਰੁਪੀਸ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਰਾਇਲ ਸਰਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਫਰੀਕਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਸਟੰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡਾਇਨਾਸੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਰੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਇਨਾਸੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਨਏ ਸਟੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਮਨੀਪੁਰਨ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ MLA ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਝੂਲੇ ਮਿਲੂਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਨਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। 3 ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਵੀਰੇ, 1 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ। ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ 10 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 7:30 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਮੇਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ, ਦੀਪਕ ਗੋਪਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫੌਗਿੰਗ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਅੱਗੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਗवर्नमेंट ਵੱਲੋਂ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। कैमरामैन विकास के साथ कुंवर रंजन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयंबिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। SS जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड में गुरनी मैया महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के सानिध्य में एक विशेष जप अनुष्ठान रखा गया। आज श्राद्ध की अमावस का दिन बहुत बड़ा होता है और इस दिन जो जप अनुष्ठान किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो फलदायी भी होता है। तो गुरनी जी महाराज साहब के मन में एक संकल्प आया, वैसे निरंतर कई वर्षों से हम ये जाप करवा रहे हैं श्राद्ध की अमावस को,
जैसे किसी की जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है, राहु केतु शनि आदि की दशा है या फिर काल सर्प दोष है, तो उसका जो शमन है वो तीर्थंकर देवों की भक्ति से कराया जाता है। यानी जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों के अंदर ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि अगर उनका जप अनुष्ठान किया जाए तो सारे ग्रह आराम से व्यवस्थित हो जाते हैं और वो किसी तरह की हानि पीड़ा नहीं पहुंचाते। तो इसलिए आज दूर दूर से आकर, सभी बाहर गांव से भी आकर सबने इस जप अनुष्ठान में भाग लिया। और इस जप अनुष्ठान में 180 माला ओम ह्रीं श्रीं श्री अरिष्टनेमि नाथाय नमः भगवान की गई। 22वें तीर्थंकर हैं ये जैन धर्म के। और शाम को सूर्य अस्त के समय 100 मालाएं पार्श्वनाथ भगवान की ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। तो इस तरह से ये जप अनुष्ठान चला और इस जप अनुष्ठान में एक मंगल कामना भी की गई कि संपूर्ण विश्व में इस तप ऊर्जा से, इस जप ऊर्जा से पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, सब प्राणियों के अंदर से रोग शोक आदि व्याधि दूर हो, सबके परिवार में, घर में, समाज में शांति का संचार हो, मैत्री भाव स्थापित हो, करुणा प्रेम और मैत्री का प्रचार हो, प्रसार हो। ऐसी मंगल कामना को लेकर के ये जप अनुष्ठान किया गया, जिसमें सब बहन भाइयों ने बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ इसमें भाग लिया। तो आज का ये अनुष्ठान, क्योंकि हर धर्म में अपने अपने अनुसार ये इस श्राद्ध की अमावस को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अनेकों तरह से कुछ ना कुछ आयोजन किया जाता है। तो जिन शासन में तो तीर्थंकर देव ही सर्वशक्तिमान है, उनकी ऊर्जा ही सर्वशक्तिमान है और उस ऊर्जा से जितना अशुभ है, जितनी अशुभ लेखा है, जितना अमंगल है, वो सारा मंगल में बदलता है, सारा शुभ में बदलता है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस जप अनुष्ठान को करता है उसका हमेशा मंगल होता है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासनरत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणेपात चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। वास्तव में तुम कुत्ते हो, हम तो केवल शरीर मात्र से हैं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो। अब क्या अंदर से जो आहें निकलती हैं वो कौन से आशीर्वाद है? वो संत है भला कि तुम संत को पत्थर मारो और तुम्हारे को वो क्या करे? दवा दे, बदवा नहीं, दवा दे। तो वो क्या देगा? दवा देगा, बदवा देगा। ऐसे ही जिसका भी हम बुरा सोचते, बोलते हैं, करते हैं, तो उसकी ओर से क्या आती है? बद्दुआएं आती। उनका हिसाब कैसे होगा? सीधा सा रास्ता, सबका भला करो और सबसे माफी मांगो। क्या करो? सबका भला करो और सबसे माफी मांगो। हमने एक जगह देखा, बड़े अच्छे श्रावक थे, दानवीर सेठ, धर्म ध्यान बहुत। जब अंतिम समय आए ना, भाई माफ करना, माफ करना, मैंने कुछ बोला हो, मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने किसी का कुछ बुरा सोचा हो, तो मेरे को क्या करना? माफ करना। लुधियाना में आत्म कुल कमल दिवाकर पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज, हमने चंडीगढ़ आना था, फगवाड़ा से उस रास्ते होना था, तो उनका स्वास्थ्य सुनते थे ठीक नहीं है, लेकिन चक्कर पड़ना था। फिर भी मन से आया, यदि उनका संदेश आया तो हम लुधियाना जरूर जाएंगे। और उनका भाग्योग से संदेश आ गया और हमने अपना प्रोग्राम बदल लिया। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट।
प्रिंसिपल इंदु ने सपुत्र सक्षम अरोड़ा का जन्मदिन दीवान टोडरमल सेवा रसोई में मनाकर पेश किया समाज के लिए नया उदाहरण। लगातार दूसरे साल सक्षम अरोड़ा द्वारा अपना जन्मदिन दीवान टोडरमल सेवा रसोई सलेम टावरी में जरूरतमंदों को खाना और केक वितरित करके मनाया गया। इन बातों का प्रगटावा एसडीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती जोधेवाल की प्रिंसिपल इंदु खुराना द्वारा किया गया और यह भी घोषणा की कि हिंदू न्यायपीठ दीवान टोडरमल सेवा रसोई के माध्यम से सैकड़ों जरूरतमंदों को रोज 10 रुपए में भरपेट और स्वादिष्ट खाना दे रही है। वह एक सराहनीय सेवा है जिसका जितनी तारीफ की जाए कम है और वह खुद इस सेवा कार्य से पक्के तौर पर जुड़ेंगी। इस मौके पर हिंदू न्यायपीठ अध्यक्ष प्रवीण डंग द्वारा आए हुए गणमान्य अतिथियों का सेवा रसोई में सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर डॉक्टर लोकेश, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के पंजाब अध्यक्ष अनिल शर्मा, अश्विनी कत्याल, अशोक कुमार अशोका, सलेम टावरी बूथ के संयोजक चरणजीत सिंह खत्री आदि विशेष तौर पर उपस्थित रहे। जन्मदिन तो चलो हर साल आता है, लेकिन जो इस भाव को लेकर मेरे बच्चे ने बोला ना कि मैंने अपना जन्मदिन वहाँ दीवान टोडरमल रसोई में जाके मनाना है, मेरा वाकई में दिल खुश हो गया। मैं तो शायद भूल गई थी पिछले साल, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाई कि मम्मा मैंने वहाँ पर जाकर बच्चों के लिए देना है, तो आप मेरे साथ चलो। ये जो दीवान टोडरमल रसोई है जो एक बड़ा ही अच्छा काम करी है, क्योंकि अन्न का दान हम कौन होते हैं किसी को देने वाले, हमारे में इतनी कहाँ काबिलियत है, वो परमात्मा देने वाला है। हमारे डंग साहब ने एक बड़ा हरा भरा बूटा लगाया जो एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। जो उनकी कोशिश है कि हर जगह पर मैं एक ऐसी रसोई लगा सकूं जो बेचारे खाने के लिए मोहताज है, कोई भूखा ना सोए। परमात्मा ने उनको इतनी शक्ति दी है कि उनमें ये भावना है और ये आगे ये भावना को प्रकाश की तरह फैला रहे हैं। मैं हर समय यही अरदास करती हूँ कि हमारे डंग सर ये जो बीड़ा जो इन्होंने उठाया है, अपने बीड़े को संपूर्ण जो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो जल्दी से अपने कामयाब होंगे। हिंदू न्यायपीठ वालों संचालित दीवान टोडरमल सेवा रसोई नूं सेवा करते हुए 1 साल तो ऊपर हो गया और बड़ा हर्ष और खुशी का विषय है कि साडा सक्षम जिहड़ा पहला बच्चा जिन्हें लगातार 2 बारी अपना जन्मदिन दीवान टोडरमल सेवा रसोई दे विच मनाया। इहो जिहे नौजवान बच्चों की जिहड़ी भावना देख के होर भी बच्चे प्रेरित होकर दीवान टोडरमल सेवा रसोई चाहते हैं, सेवा संकल्प लेंदे ने और जिहड़ा ये कार्य हिंदू न्यायपीठ की समुची टीम कर रही है, ये साडा कोई ये योगदान नहीं है, प्रभु वालों दी गई सेवा। जिन्ना चेर प्रभु का हुक्म होएगा ये सेवा चलती रहेगी। प्रयास करांगे लुधियाना शहर के जिन्ने भी प्रमुख चौंक ने उत्थे सेवा जारी रखिए और जरूरतमंदों को 10 रुपए अच्छा क्वालिटी वाला खाना देने दे विच असीं सक्षम होइए। जय श्री। कैमरामैन विकास के साथ नीता जैन की रिपोर्ट। पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा आज लुधियाना के बस स्टैंड बंद कर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना था, किंतु यह प्रदर्शन स्थगित कर 11, 12 और 13 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मौके प्रदर्शन को स्थगित करने पर पीआरटीसी के अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन लुधियाना ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਤੋਂ 2 ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਵਿਗਣ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਸ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ 11, 12, 13 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ मीटिंग करके भरोसा दो। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
जिला गुरदासपुर के बटाला शैलर मालिकों ने इकट्ठे होकर आढ़तियों के खिलाफ खोला मोर्चा। शैलर मालिकों ने कहा कि आढ़तियों द्वारा कम रेट पर फसल की खरीद की जा रही है और उसे दूसरे राज्यों में जाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि आढ़ती किसानों को भीगी या सही न बताकर किसानों को गुमराह कर रही है और आढ़ती अपने पास फसलों को स्टोर कर रही है। उन्होंने आढ़ती भाइयों को अपील करते हुए कहा कि किसानों को गुमराह न करे, किसान भोले हैं और किसानों को समझाया जाए कि फसलों को पूरी तरह से पका कर ही मंडियों में लाया जाए। ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ 17% ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਰ ਲੋਕਲ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੋਲਾ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿੱਤਾ ਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਲੀ 10 15 20 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਮਾਲ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਆਪਣਾ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ कि ये काम जड़ा है ये प्रैक्टिस बंद कर दें। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बठिंडा का सिविल अस्पताल बना डेंगू की फैक्ट्री। बठिंडा में पिछले 2 दिन पहले हुई बरसात के कारण शहर के कई हिस्से में जल भराव हुआ। वहीं बठिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल के परिसर से बरसात का पानी नहीं निकल पाया है, जिसके कारण मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं इत्थे सिविल हस्पताल बठिंडा दे विच आया, इस मरीज़ दे नाल असीं आए सी। तुसीं देख रहे हो मेरे पिछे किवें पानी खड़ा है और ये पानी 3 दिन हो गए बरसात होई नूं और प्रशासन की किड्डी वड्डी अणगहली है भी अज भी पानी की पिछे झील बनी हुई है और यह डेंगू नूं सीधा सद्दा दे रहा। जिहड़े हस्पताल सरकारी हस्पताल पंजाब सरकार दावा करदी है, मुख्य मंत्री साहब दावा करते हैं भी बड़ा वड्डा सुधार असीं क्रांतिकारी सुधार कर रहे हैं। इहदे सुधार की जिहड़ी तस्वीर है मेरे पिछे तुसीं देख सकते हो। ये डेंगू नाल जिथे हज़ारां मरीज़ इत्थे डेली नवां आ रहा है। कोविड की एड्डी वड्डी समस्या है भी वो तो मसा ही मतलब प्रशासन ने ते सरकार ने लोगों ने मसा सुख का साह लिया। ये जिहड़ा पानी खड़ा है ये उन्हां बीमारियों नूं सद्दा दे रहा और गरीब लोग जिहड़े इलाज कराउण तो असमर्थ है, इलाज का भी कोई बहुता प्रबंध नहीं, बहुत बुरा हाल है। सरकार नूं इहते तुरंत ध्यान देना चाहिए। कोई सरकारी सहूलत नहीं, कागजां 'च ही है वो सिर्फ, जां इन्हां दे भाषणां 'च होर किते कोई सहूलत नहीं मिल रही। लगदा तुहानूं इत्थे ठीक होऊगा मरीज आके? मरीज ठीक का तो पता नहीं, बीमार जरूर हो जाऊगा जी। नहीं कोई सहूलत नहीं जी। की कहोगे नवे मुख्यमंत्री ने? नवे मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के अधीन आते 3 बॉर्डर पोस्टों पर देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। कल रात बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के अधीन आते 3 बॉर्डर पोस्टों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। और तीसरा ड्रोन रात को 9:55 पर चौंतरा दोरंगला पुलिस स्टेशन में बीओपी है 58 बटालियन की, ये भी आता हुआ देखा गया। आता हुआ और जाता हुआ दोनों देखा गया और आते समय और जाते समय दोनों इस समय इसको फायर से एंगेज करा गया। और मैं खुद रात को तुरंत दोनों बीओपी में चौंतरा में और बोरबदाला में विजिट करके आया। पुलिस और पूरी फोर्सेस से सर्च कराई जो आज सुबह 9 बजे तक लगातार जारी रही और अभी तक रिपोर्ट के
हिसाब से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, पर जांच चल रही है। ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे? हाँ, ये 100% पाकिस्तान की तरफ से आए थे और पाकिस्तान लगातार अपने इस साजिश को अंजाम दे रहा है। ड्रोन के थ्रू लगातार आर्म्स, एम्यूनिशन, ड्रग्स भेजने की चाल, कुत्सित चाल लगातार चल रहा है। इसका आप बीएसएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया? हाँ, बीएसएफ के जवान लगातार बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, 16 से 18 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और तुरंत जो ही कोई गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं तुरंत उसको फायर से एंगेज करते हैं और हर तरीके से पाकिस्तान की चाल को नाकामयाब करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं लोगों से इस मौके पर अपील करना चाहूँगा कि जब भी वो कोई ड्रोन की एक्टिविटी, पर्टिकुलरली 3 से 5 किलोमीटर के, हमने सब हमारी यूनिट्स को बताया कि सारे सरपंचों से मीटिंग करी जाए और लगातार करी भी जा रही है और उनके नंबर, कंपनी कमांडर्स के नंबर हैं, वो सरपंचों को दे दिए जा रहे हैं और यदि वो कोई गतिविधि एकदम देखते हैं ड्रोन की या कोई ड्रॉपिंग देखते हैं तो तुरंत उसको इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें या बीएसएफ को करें, ताकि इससे पहले कि उसको पीछे कहीं ले जाया जा सके या देश के दुश्मनों द्वारा उससे कोई नुकसान देश का करा जा सके, उसके अपराधी को पकड़ा जा सके और सामान को जब्त करा जा सके। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।